گھر ہو تو اپنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی یادگار تقریب ہے۔ یہ اسکیم جو آج اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بے پناہ عرق ریزی کی گئی، بے پناہ محنت کی گئی۔ یہ اسکیم، اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے۔ یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے۔ گھر ہو تو اپنا، بے گھروں کے لیے حکومت کا تحفہ۔ وزیر اعظم نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا۔ بجٹ میں عوام کو بڑی سہولیات دینے کا اعلان۔ گھروں کی تعمیر کے لیے چیکس کی تقسیم کی خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عوام کو چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے۔ پہلا ہدف 50,000 گھروں کے لیے قرض ہے۔ 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کی گئی۔ 4 برس میں ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ اسکیم کے تحت 10 مرلہ زمین تک گھر بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ کی ملاقات۔ میاں ریاض حسین پیرزادہ کی کم لاگت رہائشی منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، لوگوں کو کم لاگت پر اپنی چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کچے کے علاقے میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ کچے کے مکینوں کو 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی الاٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا کچے کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم۔ 23 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کچا ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اسکول، ہسپتال، سڑکیں اور برج بنیں گے۔ پولیس اسٹیشنز اور چیک پوسٹوں میں سیف سٹی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ہونہار طلباء کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کچے کے ہر فرد کا حق ہے۔ ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ کچے کے لوگ خوشحال ہوں گے اور باعزت روزگار کمائیں گے۔ جو کچے کا علاقہ ہے، اس کا جب بھی آپ نے نام سنا تو آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر جو ہے وہ ریاست کی رٹ نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر پولیس جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے آپ کو یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنے 5-6 مہینے پہلے جو ایک بڑا آپریشن کیا کچے کے علاقے کے اندر، کسی بھی طرح کی غیر قانونی کارروائی کا کوئی کیس کچے کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا، نہ آپ کو سننے کو ملا۔ وہاں پر الحمدللہ امن ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں سے پاک کرنا ہے، کچا اب پکا ہوگا۔ کسی ڈاکو کو دوبارہ بسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام بنیادی سہولیات فراہم ہوں گی۔ زرعی زمین کاشتکاروں کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا، قانون کی بالادستی یقینی بنا رہے ہیں۔ کچے کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کر دیا۔ کچے کے علاقے میں اب کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتا۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ ایران کی آب میں ہرمز کھولنے کی تجویز مسترد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جوہری معاہدے تک کا ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے۔ ایران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، اسے اپنی ہار ماننا ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایرانی فضائیہ اور اس کے 80% میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی ہے۔ امریکی صدر کی ہرمز کی ناکہ بندی کے بیان پر خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $124 فی بیرل پر جا پہنچی اور پھر کچھ گھنٹوں پر $114 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 60% بڑھ کر $108 فی بیرل پر جا پہنچی۔ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 فی بیرل تک لے گئے، یہ 140 تک جائے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کی امریکی وزراء پر تنقید، کہا 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا، دشمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ایران کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ امریکی اقدام کا مقصد ملک میں اندرونی اختلافات پیدا کرنا ہے۔ ایسے حالات میں قومی اتحاد ہی واحد مؤثر جواب ہے۔ ہمیں مل کر امریکہ کی دھمکیوں کا جواب دینا ہوگا۔
आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का कहना है जंग के बाद खलीज और अबनाए हुर्मुज़ में नए मरहले की तश्कील हो रही है। 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद खित्ते में तब्दीलियाँ हुई। नए मरहले में खित्ते को सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। मुश्तबा खामेनाई का कहना था कि तेहरान और खलीजी हमसाय ममालिक की मुकद्दर का मुश्तरका है। खित्ते में गैर मुल्की नासिर के लिए कोई जगह नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती राब्तों और बातचीत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान फ्रीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान की अपील पर ही फ्रीकैन जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा कि सीज़ फायर से खित्ते में कशीदगी कम हुई और सफारती अमल के लिए रास्ता हमवार हुआ। हमले रुके और कीमती जानें बची। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से महफूज रखा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने हुर्मुज़ को आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह करार दिया। पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर जोर देता है। अपने हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कैलस से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुआशी और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुकालमे और रवाबित के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़म का इआदा किया। इस्लामाबाद में पाक EU बिजनेस फोरम के कामयाब इनेकाद को भी सराहा। रूसी सदर पुतिन की 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन के मामले पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का फैसला दुरुस्त करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। हमारी जंग खत्म करने से पहले पुतिन को अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन नाज़ी जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन के फतह के दिन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की रूसी सदर की तजवीज़ की हिमायत। कहा कि नाज़ी जर्मनी पर फतह का दिन हमारी मुश्तरका फतह का दिन है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर गौर। अमरीकी वेबसाइट एक्सोइस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हमले के मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम की डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त। अमरीकी फ़ौज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी का इंतबाह कहते हैं कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बहरा अरब की समत से बंद कर दिया। अगर अमरीकी फोर्सेज ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। शाहराम ईरानी ने कहा कि दुश्मन ने समझा था कि एक हफ्ते में जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। अब उनका ये अंदाज़ा फ़ौजी यूनिवर्सिटियों में मजाक बन चुका है। हम अपने शोहदा के बदले के लिए आखिरी कतरे खून तक मुत्तहिद हैं। अमरीकी बहरी बीड़े जेरल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बीड़ा मरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जा रहा है। बहरी बीड़े की मशरिक़ वस्ता से रुखसत के बाद ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीका की फायर पावर कम हो गई। उधर अमरीका ने ईरानी परचम बरदार कंटेनर शिप तोस्का के हमले के 6 अरकान रिहा कर दिए। 22 अरकान ताहाल ज़ेर हिरासत हैं। चंद रोज़ कबल अमरीका ने इस बहरी जहाज़ पर कब्जा करके हमले को यरगमाल बना लिया था। दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का गैर मुतज़लज़ल अज़म क़यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और DGISPR का 30 अप्रैल 2025 को भारत को 2 टोक पैगाम। इसहाक़ डार ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज अलर्ट हैं। कौमी सलामती कमेटी का गैर मुतज़लज़ल अज़म भी मौजूद है। भारत ने इस्तेआल अंगेज़ी की तो सख्त जवाब देंगे। DGISPR ने कहा कि हमारा जवाब इंतहाई मौसर और फैसला कुन होगा। किसी भी बिला इस्तेआल जहरियत पर हमारा पैगाम वाज़ेह है। हम तैयार हैं, आज़माना नहीं।
पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पाकिस्तान नेवी की पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर की चीन के शहर सामिया में कमीशनिंग। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी। आला अस्करी और हुकूमती हुकाम की भी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, हंगोर क्लास आबदोजें जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस हैं। ये आबदोजें बहरी दिफा, समुद्री रास्तों की हिफाजत और इलाकाई इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में एक तारीखी संग मील है। एक्सट्रीमली प्राउड, जिस तरह आप भी फ्रंट के ऊपर थे एंड याद है जनाजे पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, माई सेल्फ, चीफ वॉज देयर और हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू योर ग्रेट सैक्रिफाइस। हर बंदा सब्र के लिए दुआ करता है, फख्र भी है, सब्र भी है, मगर आई टेल यू प्लीज, ये जो दर्द है ये घटता नहीं, ख़त्म नहीं है। वफाकी वज़रा की मौके हक़ के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर अता तारड़ मुसद्दिक़ मलिक, वज़ीर मुमलिकत वजीह कमर का 7 साला इर्तज़ा अब्बास के अज़्म व हिम्मत को सलाम। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नमरदाज़मा थे। अता तारड़ ने कहा कि मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुसद्दिक़ मलिक बोले कि अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 7 माह बाद एक बार फिर घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई। ज़राए के मुताबिक गैस के शोबे को मजमूई तौर पर 600 MMCFD से जायद का सामना है। घरेलू कनेक्शन के लिए पहले से दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद मुलतवी कर दिया गया। अर्जेंट वाउचर और डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों के कनेक्शन का अमल भी रोक दिया गया। पाबंदी से हज़ारों न्यू कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हो गए। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार आवाम के लिए हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी का इनकलाबी मनसूबा। पीपल्स एयर एम्बुलेंस अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल तैयार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सर्विस का बाकायदा आगाज़ जल्द होगा। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों से ज़ख्मियों और मरीजों को फौरी तौर पर बड़े शहरों के अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस सर्विस से कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। वफाकी आईनी अदालत ने ग्रेड 17 में भर्तियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, ग्रेड 17 से ऊपर भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर कैसे हो गईं? क्या भर्तियां करते हुए तरीकाकार पर अमल दरामद किया गया? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। तकर्रियाँ सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट में की गईं। सिंध हाई कोर्ट ने भर्ती मुलाजमीन का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के रेफर करने का हुक्म दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 8 साल मुलाजमत कर ली है, अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर कर लें। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ने लगे। मज़ीद 3 अफराद में खतरनाक बीमारी की तस्दीक हो गई। तीनों मरीज में अस्पताल में ज़ेर इलाज।